नमस्ते। हमेशा खुश रहो बेटियों। माई सेल्फ JVN डॉक्टर S बुंदेला, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन मेथोडोलॉजी प्रोफेसर। सेशन टाइप ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव, प्रोग्राम BA B.Ed फर्स्ट सेम, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान। स्टूडेंट्स, the nature of the main executive of this country is decided according to the constitutional system there, as described in the beginning of the chapter, that the chief executive has been generally classified into the following three groups. First, parliamentary and presidential executive. Second, nominal and actual या real executive. Third, single and plural or multiple executive. First is parliamentary and presidential executive. Let's see. In parliamentary governance, the executive is responsible to the administrator. In this, executive power is not vested in any one person and is vested in the cabinet or cabinet. Hence, it is also called cabinet governance. Also, the executive is responsible to the administrator. Hence, it is also called responsible governance. In the theoretical and practical form of parliamentary governance, some single of inability and or visible in practice. The head of governance in this system is the nominal head, which is the king or president. The actual operation of governance is done by the real council of ministers. Second is nominal and real executive. Nominal executive means the executive who has been given supreme administrative power by the constitution, but in practice which is exercised by someone else. All administration tasks are conducted in the same name, while the actual power is used by the real executive in the execution of these tasks. A good example of this is found in the governance arrangements of India and Britain. The post of president is in India and imperial in Britain is of nominal executive. The real power rests in the hands of the Prime Minister and his Council of Ministers. In short, the existence of nominal and real executive is seen in parliamentary governance. In constitutionally, the state is the source of all the major powers, which is called nominal executive, because all powers conferred on it all actually exercised by the Prime Minister and his Council of Ministers. That is called the real executive. The real executive power in presidential system is vested in the president. Third is single and plural executive. A single executive means an executive organization in which all executive related
powers are vested in a single person, while on the contrary, in executive powers are divided among different individuals. In fact, both these are forms of parliamentary and presidential exercise. The ideal form of a single executive can be seen in the United States of America, Brazil, and South America, while the best example of a multi-executive can be seen in the governance of Switzerland. Presently, the President of the United States is the best example of a single executive. In contrast, in Switzerland, executive powers resided in a federal council of 7 members, and their federal council collectively acts as a executive head of the state. According to the opinion of some scholars, the parliamentary government of India and England are also example of a single executive. This session prepare digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. If you have any query, you can comment box. I will solve it. Thank you. आफ्टर इंग्लिश अब हम बात करते हैं हिंदी में मुख्य कार्यपालिका के विभिन्न प्रकार। आज का सेशन किसी भी देश की मुख्य कार्यपालिका का स्वरूप वहाँ की संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार तय किया जाता है। जैसा वहाँ पर व्यवस्था है संविधान में, ठीक है, उसी के अनुसार वहाँ पर व्यवस्था होती है। जैसा कि अध्याय के प्रारंभ में हमने बात की, मुख्य कार्यपालिका 3 भागों में बटी हुई है। एक तो संसदात्मक और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, दूसरा जो प्रकार है नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका, और तीसरी है एकल और बहुल कार्यपालिका। देखिए, जो पहली जो है संसदात्मक और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, इसमें संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है, क्योंकि जो संसदीय शासन व्यवस्था है उसमें कार्यपालिका कहाँ से ली जाती है? व्यवस्थापिका में से, ठीक है, मीन्स लेजिस्लेचर में से। इसमें कार्यपालिका शक्ति किसी एक व्यक्ति में निहित नहीं होकर मंत्रिमंडल या कैबिनेट में निहित होती है, इसलिए इसे मंत्रिमंडलात्मक शासन भी कहते हैं। साथ ही कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए इसे उत्तरदायी शासन भी कहा जाता है। संसदात्मक शासन के सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप में इनके कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। व्यवहार में इस व्यवस्था में शासन का प्रधान नाम मात्र का प्रधान होता है, जो कि राजा या राष्ट्रपति होता है। जैसे इंग्लैंड में कौन है? राजा, और भारत में राष्ट्रपति। शासन का वास्तविक संचालन वास्तविक प्रधानमंत्री परिषद द्वारा किया जाता है। दूसरी है नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका, नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। नाम मात्र की कार्यपालिका से तात्पर्य है उस कार्यपालिका से जिसे संविधान द्वारा सर्वोच्च प्रशासनिक शक्तियाँ दी गई हों, किंतु व्यवहार में उसका प्रयोग किसी अन्य के द्वारा किया जाता है। प्रशासन के समस्त कार्य उसी के नाम से चलते हैं, जबकि इन कार्यों के संपादन में वास्तविक शक्ति का प्रयोग वास्तविक कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। भारत और ब्रिटेन की शासन व्यवस्थाओं में इसका अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है। भारत में राष्ट्रपति और ब्रिटेन में सम्राट। बहुत बार कई बार इस टाइप के कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन आते रहते हैं। वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के हाथों में ही होती है। हम तीसरी बात करेंगे अब एकल और बहुल कार्यपालिका की, सिंगल एंड प्लूरल एग्जीक्यूटिव। एकल कार्यपालिका से तात्पर्य उस कार्यपालिका संगठन से जिसमें कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियाँ एक ही व्यक्ति में होती हैं, जबकि बहुल कार्यपालिका में कार्यपालिका की शक्तियाँ विभिन्न
व्यक्तियों में बटी होती है। ये दोनों संसदात्मक और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के रूप हैं। एकल कार्यपालिका का आदर्श स्वरूप अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलता है, जबकि बहुल कार्यपालिका का श्रेष्ठ उदाहरण स्विट्ज़रलैंड में देखने को मिलता है। वर्तमान में अमेरिका का राष्ट्रपति एकल कार्यपालिका का सर्वोच्च उदाहरण है। इसके विपरीत स्विट्ज़रलैंड में कार्यपालिका सत्ता 7 सदस्यों की एक संघीय परिषद में होती है और यह संघीय परिषद सामूहिक रूप से राज्य की कार्यपालिका प्रधान के रूप में कार्य करती है। आज के लिए बच्चों इतना ही। ये सेशन डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया गया है। मैं ये आशा करता हूँ कि आप मेरे डिजिटल सेशन से खुशी होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं इसे हल करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।